I, Ankita Deshkar, welcome you all on behalf of both Manthan and VMA. This is the first time both the organizations have collaborated to bring to fore one of the most discussed topics of our times, Indian way of management, and we are proud to present you the eminent speaker Sandeep Singh ji. Indian ethos in management refers to the values and practices that the Bharatiya Sanskriti can contribute to service, leadership, and management. And I'm sure we'll get a glimpse of the rich Indian culture in the management as Sandeep ji speaks today. Speaking about VMA, Vidarbha Management Association, is an action-based management learning organization. Its 17 glorious years have been a journey of sharing and spreading knowledge, disseminating learning, and building the region's intellectual capacity and community through their plethora of events, sessions, and activities. As the trends of technology, communication, and globalization takes a forefront, knowledge is becoming the imperative factor through which business can distinguish themselves and soar to new heights. VMA's endeavor has always been to equip their members with global best practices on management where they can go home with actionable takeaways, and I'm sure today is one of that days. Manthan, on the other hand, is a youth-driven organization in Nagpur whose sole purpose is to churn ideas with Bharatiya legacy, just like the Samudra Manthan, which would lead to origin of the elixir of eternal life called Amrit. At such critical junctures of modern life, Bharatiya Darshan can serve as a much-desired lighthouse. Bharatiya wisdom covers a spectrum as varied as economy, human relations, arts, culture, spirituality, and ethics. It is an ocean which has never failed in quenching the thirst of an honest seeker. Manthan has always been on a lookout for such who wish to quench their thirst. Manthan has held talks on varied topics and has brought to Nagpur some of the finest speakers of the nation, starting with Vivek Agnihotri ji, with whom Manthan's journey began in 2018. And then we had to call Monika ji Arora, Padma Shri Meenakshi Jain, Guru Prakash Paswan ji, J. Sai Deepak, Nitin Gokhale ji, Anand Ranganathan ji, K. Mohammed ji, and the list goes on. Today, both these organizations have held hands, and we are honored to welcome Sandeep ji to Nagpur and present Indian way of management. I request Sandeep ji to please take their seat on dais, and I request Mangesh ji Joshi, who is the moderator of today's event, to please escort him to the stage. The event will be moderated by Mangesh ji Joshi, and before that, I please request Bhim Rai ji Maitri, Director of IIM Nagpur, to please felicitate our speaker Sandeep Singh ji and welcome him on behalf of VMA and Manthan. He is a mechanical engineer. He has an MBA in finance.
He has a diploma in international business, and he has the credit of developing of innovative products for benefit of the society. He has been a past president of VMA, Thai Nagpur, Rotary Nagpur, and I'm sure you have listened to him at various occasions as he is known as speakers, and he has spoken on various forums. So I now present the stage is now open for both the moderator and our speaker for today, Sandeep ji. And I'm sure you have put your mobile phones on silent, and I'm also sure you are ready with your mobile phones and pen and a paper if you have any questions to ask our speaker for today. So handing over the stage to both of you, and we are all set. Thank you so much. Thank you, Ankita ma'am. Good morning to one and all. Successful ongoing career, then logically there can be only three reasons. There can be more. You find something better to do. You are not happy with the current scenario and want to do something else. And you get instigated due to something and thereby get challenged and then change the career track. Our esteemed guest for today, Sandeep ji, falls in the last option. What intrigues me most is that a person of caliber of Sandeep ji, who being an alumni of Xavier Institute of Social Science, Mudra Institute of Communication, IIM, and having worked with advertising moguls like R.K. Swamy BBDO, A.C. Nielsen, ORG Marg, HTA, and media companies like ETC, Sub TV, Sahara News, he fell for that instigation and made him change his mind about the current career, so much so that he left everything and dived into do thorough research in the very topic that we are going to know about today. He not only authored a book on the said topic, but he vociferously advocates his findings also. So much for getting instigated by someone. We will know from whom only he got that instigation, who that someone was, and what exactly was said to Sandeep ji to make him change his successful career path. The passion that he demonstrates in research resulted in him authoring many books: Business of Freedom, Indian Ocean Strategy, Simhavalokan, Tiny Tall Tales, and maybe one or two more are in pipeline. Till 2006, he was in a different league altogether, and then the paradigm shifted. To understand more on what made Sandeep ji jump the gun, what was the driving factor? Because without a driving factor, there cannot be jumping of a gun. So what was the driving factor? What did he want to achieve when he jumped the gun? What has he actually achieved so far? And how much he wants to go further in achieving his aim. So let us hear it from our esteemed speaker today, Sandeep ji. Over to you. माँ सरस्वती की चरण वंदना, गुरुजनों को चरण स्पर्श. Good morning, everyone. And I'm thankful to Vidarbha Management Association, Kshitij ji, Manthan, for inviting me and giving me an opportunity to speak. Thank you, ma'am, for the nice introduction. Thank you, Mangesh ji. I'm glad Professor Maitri made it here. इन्होंने जब इनवाइट मैंने देखा, उस पर मेरा फोटो भी डाल दिया था, तो मुझे डाउट था कि इतने लोग आएंगे फोटो देखने के बाद भी. फिर भी आप लोग सब आए, इसलिए धन्यवाद. संडे मॉर्निंग मैं इंडियन वे ऑफ मैनेजमेंट या भारतीय मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करूंगा. ऑब्वियसली जिस देश का इतिहास इतना पुराना रहा हो, उसको एक घंटे में सपेटना काफी मुश्किल काम है. तो मैं आप लोगों को स्प्रिंकल्स, बूंदे कुछ छिड़क जाऊंगा, अच्छी लगेंगी तो सिप की तरह आपके साथ वो मोती बन जाएंगी, इस उम्मीद में. और मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा, आई एम वेरी क्लियर. मैं जो भी कहूंगा वो सब आपको पता है. मैं खाली उसको एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करूंगा और हम उसमें देखेंगे क्या मैनेजमेंट है. और बड़े आराम से, बहुत बिना एक्साइटमेंट के मेरा लेक्चर रहता है. एंड होप यू विल लाइक इट. सो लेट्स बिगिन. So पहला प्रश्न आता है कि why you need management at all. So when you need to manage something,
एंड ऑब्वियसली हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कमर्शियल टर्म में बात ध्यान में आती है कि वी मस्ट हैव हैड इनफ मनी. So I won't get into much depth, but there are enough studies like of Angus Madison, which says yes, that India's contribution to world GDP was very high. There was a time when India's contribution to world GDP was 40%, China's was 40%, and rest was shared with the rest of the world. और हम वहां से गिरते आए बड़ी तेजी से, अब हम 5-6% पे आ गए हैं. I'm not getting into that. That's for some other day, some other occasion. बट जो मैं जैसा इंटरप्रेट करता हूं कि समुद्र मंथन इस देश का सबसे पहला रिकॉर्डेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है. अगर आप ध्यान दें, समुद्र मंथन से हमें मिला क्या? एलिफेंट, जिसका इंडस्ट्रियल वर्क होता है. हॉर्स, आज भी हम एनर्जी को हॉर्स पावर में मेजर करते हैं. इकोनॉमी के टर्म में हमारे पास कल्प वृक्ष था. गाय, काउ इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है. हमारे पास धनवंतरी थे, हेल्थ. लक्ष्मी जी थी जो प्योर इकोनॉमिक्स. और फिर हम उसके बाद आगे आते हैं तो आपके पास पोल्यूशन भी था एज ए पॉइजन. सो इट वाज प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज रिकॉर्डेड एज ए समुद्र मंथन. एंड मैं इस बात को और सब्सटेंशिएट करना चाहूंगा कि आपको भारत का नक्शा मालूम है, हिंद महासागर का नक्शा मालूम है क्या? कैन यू विजुअलाइज द मैप ऑफ इंडियन ओशन? दैट्स द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री. हैव यू एवर थॉट ऑफ? आई एम श्योर. And why was it named after a country? There has to be a reason for it. So it's very simple. This is what the map looks like of Indian Ocean. Imagine how vast it is. So even Australia lies on the Indian Ocean. I don't know how many of you realize it before this. So we generally don't appreciate how great we are. And why was it named so? Because आप कंबोडिया तक जाएंगे तो आपको भारतीय व्यापारियों का इम्पैक्ट दिखता है. हमारे मंदिर है वहां पे. अप टू कंबोडिया, आप मैप में देखेंगे कंबोडिया कहाँ है. इंडोनेशिया एंड ऑल तो वी ऑल नो. आप अफ्रीका में जाएंगे, वहां आज भी हमारा बिजनेस का इंपैक्ट आपको दिखेगा. ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में हमारे यहाँ के आर्काइवल डिगिंग में हमारे भारत के बने हुए कई सारे चीजें मिली हैं और उस पर बहुत ज्यादा अभी रिसर्च नहीं हुआ है. तो हमारा इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा था, इसलिए उसका नाम हिंद महासागर पड़ा. और आप इन किसी भी बॉर्डर कंट्रीज में जाएंगे, आपको इंडियन बिजनेस के ट्रेसेस आज भी दिखेंगे. सो एक बड़ा सवाल आता है कि हम व्यापार करते थे, ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे. मैं कुछ बेसिक सवाल जो ऐसे बच्चों के आते हैं कि हम थे तो ये था वो था, उन सवालों का जवाब देता हूं. तो एक फ्रेंच ट्रैवलर लिखते हैं कि वो पाटलिपुत्र में 5 दिन ट्रैफिक जाम में फंसे थे 7th सेंचुरी में. अब 7th सेंचुरी में पटना में 5 दिन का ट्रैफिक जाम क्या होगा. तो उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट होता था सामान का, आज की तरह ट्रेनें नहीं थी, तो बैलगाड़ियों के कारवान चलते थे या लश्कर चलते थे जो 100 से 200 बैलगाड़ियां एक साथ चलती थी. और वो बैलगाड़ी ऐसी नहीं होती थी जो हम आज देखते हैं. उनमें 4 से 8 बैल जुते होते थे, तो वो काफी बड़ी बैलगाड़ी होती थी. और जब वो कारवान चलता था तो वो पूरा समाज चलता था. तो पूरा इट वाज ए मूविंग विलेज इन ए वे. और वो जब नॉर्थ से साउथ जाते थे तो वीट लेके जाते थे और रिटर्न में सॉल्ट लेके आते थे. और कौन सा कारवान किसमें ट्रेडिंग करेगा वो फिक्स होता था. एंड जहां वो रुकते थे उनका शिक्षक भी उनके साथ चलता था, उनके बच्चों को वहीं पढ़ाता था. तो इट वाज अ मूविंग सिटी इन दोज डेज. और जब इस तरह के 2 कारवान क्रॉस करते थे तो ट्रैफिक जाम हो जाता था. सो दैट्स द फाइंडिंग व्हिच एस्टोनिशेस मी इवन टुडे. Travelers, when they meet caravans of this descriptions, are sometimes obliged to wait for 2 or 3 days till all have passed. फिर नेवी शिप के बारे में बहुत लिखा गया है. आई विल जस्ट सम इट अप इन वन लाइन. जो नव शब्द है नेवी का, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत नव. सो दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री वी हैड. एंड वी हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. ब्रिटिशर्स ब्रोक वन शिप which was operating in Godavari River, made 7 ships out of that and traveled back to England. You can imagine the size of the ship in the Godavari River. So shipping history, Indian shipping industry is full of adventure and excitement.
ये पिक्चर जो देख रहे हैं, इसमें एक आदमी जो है एक ट्रक बैम्बू नदी से ट्रांसपोर्ट कर रहा है अकेला। सस्ता, सुंदर, मजबूत, प्योर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये आज भी होती है नॉर्थ ईस्ट में। ये बहुत पुरानी पिक्चर नहीं है, 2005 की है। सो एक आदमी एक ट्रक बैम्बू ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्योर एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में। सो अगर ये सवाल था, हमारे यहाँ वेल डिफाइंड रोड्स थे, सो आई जस्ट आंसर्ड कि हम बहुत बड़े इकोनॉमी थे तो हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे चीजों का। व्हाट वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड मैं उसमें जाऊंगा नहीं। हमारे यहाँ 64 कलाएं अलग अलग समय बदलती रही हैं, उस पर बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। स्टील डमास्कस सोड जो यहाँ का फेमस था, पूरे विश्व को कपड़ा हमने पहनाया। इजिप्ट में पिरामिड्स में जो मम्मी है वो भारत में बने कपड़ों में लिपटी है। सो दैट्स आवर हिस्ट्री। सो दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट। अब सवाल दो आता है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए और बहुत बड़ा बिजनेस मैनेज करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है। बहुत बड़े बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग भारत में ओरिजिनेट हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा था, वरना कम पैसे होते तो किचन खर्च जैसा लिखा जाता है वो सिंगल एंट्री में हो जाते। सो दैट वाज द ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। Now coming to, I'm sure there are some CAs and everybody must be filing income tax return. मोदी जी ने छोड़ा नहीं किसी को। So हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च क्यों है, जैन दिसंबर क्यों नहीं है? करेक्ट। तो जब अंग्रेज आए, हमारा इकोनॉमी इतना डोमिनेंट था कि उनको हमारा फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारा हार्वेस्ट सीजन तब होता है। और जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं आज भी उनका फाइनेंशियल ईयर यही है। कुछ लोगों ने चेंज किया है, कनाडा ने कुछ वर्षों पहले चेंज किया। सो दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ आवर बिजनेस ऑन द फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेशन। दिस आर स्मॉल नगेट्स। द अदर इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट, आपने कभी सोचा बिना कैलेंडर के बिजनेस कैसे होगा? सो आवर कैलेंडर वाज द परफेक्ट। व्हेन चर्च यूज्ड टू सेंड रिप्रेजेंटेटिव व्हेन दे केम टू इंडिया अर्लियर दोस डेज, दे थॉट कि अगर वो कन्वर्ट नहीं होंगे तो हमारे लोग उनको कैलेंडर बनाना नहीं सिखाएंगे। सो दे कन्वर्टेड, learned how to make calendars, went back, and that's how the current calendar that we follow Gregorian was corrected. उसका इम्पैक्ट कैसे होता है? ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एक बुक है जो इंश्योरेंस कंपनी करीब 400 साल पुरानी है, उसमें से एक कोट है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन ब्रिटेन एट दिस टाइम द जूलियन कैलेंडर first established by the Roman was still in force. This accounted 25th March as the first day of the new year. Therefore, the 12th January referred to in the previous paragraph was still part of the year 1696. However, the Julian calendar was proving to be very inefficient, as it actually gave an error of 11 minutes 14 seconds every year, which amounted to almost 1.5 days over 200 years. To correct this, the Gregorian calendar has been introduced. सो कई सारी चीजों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट वो हमारा कंट्रीब्यूशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। उज्जैन वाज द मेरिडियन लाइन फॉर कैलकुलेटिंग वर्ल्ड टाइम। आई होप एवरीबॉडी नोज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड महाकाल। तो काल रिप्रेजेंट्स टाइम आल्सो। सो दैट्स हाउ उज्जैन वाज देयर, एंड दिस वाज द कंपनी हैंड इन हैंड व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1696। सो जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको हर साल अगर 11 मिनट लॉस होता है तो इंपैक्ट समझ में आता है, एंड यू नीड अ परफेक्ट कैलेंडर। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप कैलेंडर के लिए क्या चाहिए? फॉर कैलेंडर यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी। विदाउट एस्ट्रोनॉमी यू कांट मेक ए गुड कैलेंडर, एंड इफ यू वोंट अंडरस्टैंड एस्ट्रोनॉमी you won't be able to undertake sea navigation for long distance. आप यहां से कंबोडिया से अच्छा जहाज बना के नहीं जा सकते हैं, आपको नेविगेशन के लिए एस्ट्रोनॉमी आनी चाहिए। और हमारी एस्ट्रोनॉमी बहुत उन्नत थी, और उसका रिजल्ट क्या है, क्यों थी, और हम इतना बड़ा बिजनेस कैसे करते? I'll come back to this part. So हम इतना बड़ा बिजनेस कैसे करते थे? क्योंकि आपको बड़े कैलकुलेशन अगर रोमन स्क्रिप्ट में करने हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। हैव यू थॉट ऑफ 1 2 3, हाउ विल यू राइट 1000 और 10,000 और 1,00,000 और 10 lakh? So that was the reason why Romans or Europeans couldn't venture out doing much in terms of business or astronomy till India gave them the place value system of decimal and zero.
And that is what we could made us do better in terms of astronomy, hence calendar, and hence business, because you could do bigger calculation, and hence you could do navigation in the sea. And there are more elaborate explanations, but short of time, so I'll stick to this part only. So हमारे यहाँ जीरो बड़ा जल्दी एक्सेप्ट हो गया. अगर हम जीरो को बहुत ही आसानी से देखते हैं, डीपली नहीं देखते हैं, जीरो इज अ बिग फिलोसॉफिकल डिबेट. जीरो मतलब शून्य जिसके अंदर कुछ नहीं है, या 10 में लगता है तो उसके अंदर 9 है. And there's a huge philosophical debate. It took church 400 years to accept the concept of zero. And again, C.K. Raju defines it, it calls it Maths War 1 and Maths War 2. Church again fought a second world war on maths. They took some 200-300 years to accept the concept of infinity and integral calculus. And again, for to do bigger calculations, you need integral calculus, जो maths या physics के लोग होंगे वो appreciate करेंगे. So हमारे यहाँ से बड़ा interesting रहा कि सारी चीजें मंदिरों से निकली. So the first oldest inscription of zero is found in a temple in Gwalior. So that was how temples were a center of science, economics, everything. And that's what the role they played. Now, going back to a few slides here, what you see here is written in Muriya Lipi. We had a very evolved insurance system, Bharatiya Jeevan Paddhati. So, it was very detailed insurance system that we had. अगर बारिश में आप नाव से सामान लेके जा रहे हैं नदी से, so you will pay more higher premium. आप किस रास्ते से जा रहे हैं, you will pay more premium. The interesting part was that कि अगर आप जिस सामान को नदी में नाव से लेके जा रहे हैं और वो डूब जाती है, आपका आधा सामान डूबता है, आधा बचा रहता है, तो सेटलमेंट कैसे होगा? तो इंश्योरर के पास दो ऑप्शन है, या तो पूरे सामान का पैसा ले ले, या आधा सामान ले ले और आधा जो डूब गया है उसका पैसे ले ले. दूसरा ऑप्शन था कि वो पूरा पैसा ले ले और जो इंश्योरेंस जिस कंपनी ने या जिस व्यक्ति ने किया है वो आधा सामान बेच के अपना कॉस्ट रिकवर कर ले. सो उतने फाइन ट्यूनिंग थी हमारे इंश्योरेंस की उस समय भी. सो सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स थे, तो पढ़ाए कैसे जाते थे? सो पढ़ाई दो तरीके से होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. हमें इनफॉर्मल तरीके से सबको मैनेजमेंट कैसे बताया गया, आई विल कवर दैट पार्ट ऑफ इट. यू वांट टू बी देयर? दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू. If you want to use this because you have to turn again and again. हाँ, नो इट्स फाइन. आवाज आ रही है ना? ये आपने देखा है, आपने कभी तराजू से सामान बेचने वाले से सामान खरीदा है क्या, जो ऐसे वजन करके देता है, आप उसको बोलते हैं 1 किलो आलू दो, तो 1 किलो आलू तौलता है, उसके बाद क्या करता है? एनी थॉट्स? और कुछ? And there are many examples. So, I'll give another example. दोनों चीज पहचानते हैं, that is called सांप सीढ़ी. So that is actually invented in India. लूडो पढ़ते हुए सांप सीढ़ी that was called मोक्ष. उसमें ऐसा था कि क्रोध, गुस्सा, ऐसे सब चीजें आती थी, लालच, लोभ. तो यूज्ड टू गेट अ स्नेक, सांप आएगा पीछे आएगा. आपने अच्छा काम किया, चैरिटी की, तो यू गेट अ लैडर एंड विल गो. So 100 was मोक्ष, 99 was lust. लस्ट किसी भी चीज की अत्याधिक डिजायर, कोई भी चीज हो, पैसा हो, मेरे लिए रसगुल्ला है, किसी के लिए कुछ होगा, तो यू नो, एंड दैट इज द फॉल जस्ट बिफोर द मोक्ष. आपने देखा हमारे यहाँ के विश्वामित्र को मोक्ष के समय मिलकर दी जाती है. सो द लास्ट हर्डल व्हेन यू आर देयर, यू आर टेस्टेड एंड दैट्स व्हेन यू क्रॉस, यू डू वेल और यू फॉल बैक. सो दैट वाज मॉडल. When British came, they couldn't correct with what is moksha for the rest of the world. So they simplified it, they made it 1, 2, 3. Ultimately, that game went on to develop as a monopoly. आप सबने खेला होगा, उसको business भी बोलते हैं. In this game, you come to a stage where you have to go to a jail. And in the jail, you have two options. You pay a penalty and come out, or you miss the chance and stay in the jail. What will you do? So I've seen over last 10-12 years, पहले यूनानिमस होता था कि पेनल्टी दे के बाहर आ जाएंगे. अब कुछ लोग बोलते हैं सोचेंगे. इसका मतलब
बच्चों को बचपन से ये सिखाते हैं कि पैसे के लिए जेल में रहना चाहिए। जब वो बच्चा बड़ा होकर सीईओ बनता है तो लमान ब्रदर जैसे करप्शन करने में परेशान नहीं। आपने बचपन में सिखाया है कि जेल जाना बुरी बात नहीं, पैसे बचाना। That's how kids think. When you talk to them, हम जब बोलते हैं हम सोचते हैं कि वो हमारे पर्सपेक्टिव से समझ रहा है, बच्चा बच्चे के पर्सपेक्टिव से समझता है, उसका कंक्लूजन बहुत अलग होता है जो बड़े लोग समझाना चाहते हैं। बच्चा आप देखेंगे टीवी में हम कई बार परेशान होते हैं कि एक ही एपिसोड बार बार देखता है क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग कम है। हम छोटे बच्चे को बोलते हैं 5 मिनट रुको, वो आपसे तुरंत पूछेगा 5 मिनट हो गए क्या, 1 घंटा रुको, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन कम है, उसकी समझ उस हिसाब से। हमको 1 घंटा समझ में आता है, जिसने 10 साल देखा है, 5 साल देखा है, उसको 1 घंटा नहीं आएगा। So that is how things will start impacting business. And when the kids grows up, they'll have a different mindset. If पैसे बचाने चलेगा 6 महीने जेल में, and he'll go and do it. You won't hesitate to do that. Do such things work? And we will do that. ईश्वर ज्ञानी जी की बुक है स्ट्रांगली रिकमेंड छापने में इंडिया, बहुत पुरानी हो गई, हर भाषा में ट्रांसलेट हुई, ओरिजिनल प्राइस 99 है, स्कैनर में 50 में मिलती है, जरूर पढ़िएगा। He writes something very interesting on page 32. He says कि उनके दादाजी शाम को सब बच्चों को बैठ के भारत के शिक्षा के बारे में बताते थे, रामायण की कहानी सुनाते थे, फिर हनुमान मंदिर ले जाते थे, जो उनको एकदम पसंद नहीं था। पेज 52 पे वो लिखते हैं, and he said somewhere कि he was called man of failure. बिग बाजार से पहले 6 बिजनेस फेल हुए थे, तो जो ये था कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस दे दो किशोर को और फ्लॉप कर देगा। He writes on page everything okay now. So he writes कि when I was truly trying times, but जो हमारे साथ खड़े हैं उसमें मेरी पत्नी, मेरा भाई जो एकदम आइडियल भाई है, और मेरा एक असिस्टेंट मेरे साथ था। रामायण का इफेक्ट था जब माँ सीता, लक्ष्मण जैसा भाई और हनुमान जी साथ। It doesn't comes to you the way you look. Those things come back to your life. That's what you call karma or subconscious effect. I have many examples like this to start with. So, why not teach these things in school? This gentleman gets GMAT, graduate management aptitude test. He comes in to ethics can't be taught in a business school. You can't leave everything for the school teacher to teach, what most of the parents have started doing nowadays. Something has to be taught by the society and the family. हर अच्छाई की चीज अब स्कूल में टीचर सिखाएगा, हम घर में बुरा करते रहेंगे तो नहीं चलेगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। So something has to be taught. So that is why this was taught. ये तो अभी बोल रहे हैं, हमारे पूर्वजों को बहुत पहले से पता था। और बचपन से आपके खेल से मेरे पूरा सेपरेट लेक्चर है कि हाउ इंडियन and research back how Indian stories and lullabies made Indian kids more orderly. They are the best entrepreneurial kids in the world. It's an amazing analysis and a thought. So this is what it does. So हमारे यहाँ formal education भी था, तक्षशिला की, नालंदा की, कुछ तो पढ़ाते थे वहाँ, क्या पढ़ाते थे बिजनेस से। तो हमारे यहाँ बड़ा मनुस्मृति, जिसको हमारे बिना पढ़े हर कोई गालियाँ देता है। मैं कई टीवी डिबेट्स पर मैंने पूछा तो भी गाली दी कि भाई मुझे संस्कृत में दिखा दो कहाँ ये लिखा है। लोग उसके बाद चर्चा करना छोड़ देते हैं। अगर हमने पढ़ी होती तो कई सारी अच्छी चीजें मिलती, जैसे उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वे डिफाइन हर अर्थ कर। तो हमारे यहाँ पे व्यासा जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया। आप अधिक खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे, दोनों में लोग क्वेश्चन करेंगे आपको। सो दिस इज त्रिवत्ता। However, the desire, kama and material will must be rejected if contrary to them. अगर धर्म के विरुद्ध है, धर्म is separate from religion. हमारे यहाँ धर्म is something what should be good. आप सांस लेते हैं वो आपका धर्म है। वो सूरज घूमता है, चंद्रमा घूमता है, उसका धर्म है इसमें। So that is how it should be. अगर वो गलत है सबके लिए तो आप नहीं करेंगे। So हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में सारी बिजनेस की फिलॉसफीज हैं, जिसको हम अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ते या पढ़ाया नहीं जाता। इसके सारे की ट्रांसलेशन पीडी कानेजी ने की है, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको नेट पे भी मिलती है, जिसको इंटरेस्ट है पढ़िए। काफी वॉल्यूमिनस किताब है, 6-8 वॉल्यूम में है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लॉ, जैसे जैसे समाज इवॉल्व हुआ अलग अलग लॉ लिखे गए। तो इतने सारे, इनमें क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मनु वो कहते हैं कि आपने अगर कारपेंटर को बुलाया है टेबल बनाने के लिए,
और वो टेबल बनाते वक्त बीमार पड़ जाता है, तो आपको वेट करना होगा जब तक वो ठीक होके नहीं आता, क्योंकि वो जान उसके बीमार नहीं पड़ा है। इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, जैसे इंश्योरेंस में बोलेंगे। बट अगर आपको जल्दी है अपने कारपेंटर टेबल बनाने की, आप दूसरे कारपेंटर से बनवा लीजिए, बट आपको पैसा पहले वाले को भी देना पड़ेगा। इतना लेबर का सिक्योरिटी किसी और देश में शायद नहीं रहा। I'll give another example. So, this gentleman writes something very interesting कि हम मनु को बहुत गालियां देती हैं, बट 21st सेंचुरी के हिसाब से उसने किताब नहीं लिखी, इसलिए गालियां देती हैं। उसकी गलती ये है, वो अपने समय के हिसाब से किताब लिख रहा था। So, this is another interesting। नारद मुनि जी को हमारे पिक्चरों में कैरिकेचर बना दिया गया, बट अगर आप नारद शास्त्र पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हमारे यहाँ आज भी समर ट्रेनिंग के लिए इतना अच्छा रूल्स नहीं है जितना इन्होंने लिखा। समर ट्रेनिंग जो होगा वो शिक्षक के घर पे रहेगा, शिक्षक जो काम बताएगा उसको वो करना पड़ेगा, वो जो सामान बनाएगा वो शिक्षक का कॉपीराइट उसकी होगी। अगर वो छोड़ के भाग जाता है तो उसको वापस पकड़ के लाया जाएगा, और अगर शिक्षक नहीं सिखाता है सही से तो शिक्षक को भी पनिश किया जाएगा। आप अगर आपके बच्चे या दोस्त होंगे, आपने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग काम किया होगा, तो हर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। उस समय लगता है कि ऐसा रूल होता तो कितना अच्छा होता मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इट वाज अ वेल डिफाइंड सिस्टम इवन इन दोस डेज। सामान खरीदे जाते थे तो वापस भी किए जाते थे, तो सामान वापस करने का भी रूल था, बहुत क्लियर कट था कि आप फ्रूट और फ्लावर को आपने जब खरीदा आप तुरंत वापस कर सकते हैं। ये नहीं कि घर जाके वापस आए एक दिन बाद की खराब है। वहां से लेके टिन या मेटल की चीजें खराब नहीं होती हैं, इसलिए आप उसको 10 दिनों तक वापस कर सकते हैं। तो दैट वाज अ डेप्थ वी डोंट नो अबाउट इट, वी आर नॉट नेवर टॉट अबाउट इट, एंड वी हैव नेवर लुक्ड इनटू इट। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स, बट अगर आप पढ़ेंगे तो हम जस्ट गिव एग्जांपल। यज्ञवाल्क्य ने इंटरेस्ट रेट के ऊपर पूरी थ्योरी लिखी है, क्योंकि अमेज्ड वी हैव गॉट पनिशमेंट फॉर चीटिंग इन मेजरमेंट। स्त्री धन कंसेप्ट आजकल बोलते हैं, तब यज्ञवाल्क्य ने लिख डाला था स्त्री धन क्या होता है। अगर मनुष्य को मेल प्रॉब्लम में है बिजनेस के लिए, तब वो पैसे ले सकता है, और जिस दिन पैसे आएंगे तो फर्स्ट मनी दैट विल बी रिटर्न विल बी द मनी ऑफ द वाइफ हूम ही हैज टेकन फ्रॉम। So that is where it starts in law of Brihaspati. It talks about partnership. Will be amazed. हम ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं, उसमें जितनी डिटेल में ड्यू डिलिजेंस की चर्चा है, आपको क्या क्या देखना चाहिए किसी से पार्टनरशिप करने के लिए। आज का ड्यू डिलिजेंस हम देखते हैं, मुझे वो सॉफ्ट लगता है उसके कंपैरिजन में। So that was the depth of study people had. Pricing and non-delivery of goods पे क्या पेनल्टी होगी। स्मृति चंद्रिका talks about loss of goods, description of documents of all kinds. आज हम अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, किस किस चीज के लिए कैसे कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। स्मृति चंद्रिका has given you all the details. And then विघ्नेश्वर talks about covers the wage formulation. What he says कि अगर कोई आदमी किसी व्यक्ति से काम कराता है बिना उसका तनख्वाह तय किए हुए पहले, तो उसको अपने टोटल टर्नओवर का 10% एज अ पेनल्टी देना होगा, प्रॉफिट का नहीं, टर्नओवर का। So that was the kind of strict rules people used to follow, and that was the reason why our business or those guys were called Srishti, जो भी इन चीजों को फॉलो करता है। So that is how was part of the formal education. This is a small book in case you don't want to read P.V. Carnegie की पूरी पुस्तक, you can read this, a very small book and very good book, The Dharma of Business. So business is tied to and mutually influence religion, politics, and community, and it cannot be treated as an independent institution. Where there is a conflict, business concern and goals must yield to religious, social, and political goals. So देश सर्वोपरि है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों को मार रहा है, फिर भी हम उसके साथ ट्रेडिंग करेंगे। Correct? So country comes first. It was very clear. Business without virtue is exploitation and theft. अब सवाल उठता है कि how is it relevant today? इतनी सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा लंबा सा केस स्टडी बताऊंगा। ये 17 सितंबर थी का विश्वकर्मा पूजा, जो शॉप फ्लोर वाले हैं उनको पता होगा, बाकियों को मालूम नहीं मुझे। बट इन इंडिया they always appear to have thought of this and to have held by the truth. I never heard of the god Vishwakarma, the god of the arts and crafts, before I learned of him from Dr. Kumaraswamy. But he seems strangely
like a personification of that Platonic idea of abstract view, which for so many centuries has haunted the Western mind. Whether it be Plato or Plotinus, Cicero or Miranda or Rossetti, ever and again in the great periods of our Western development. The idea lingers, who knows? Perhaps Vishwakarma is the God for whom we in the West, in our spiritual awakening, are in search. Possibly he can help us. Because जब आप हमारे यहाँ जब भी कारीगर कोई काम शुरू करता है वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, भले अपने फोर फादर से सीखता है, बट प्रार्थना ये होती है कि मैं जो भी बना रहा हूँ वो भगवान की तरफ से, विश्वकर्मा की तरफ से बना रहा हूँ. So you start with a very noble and a holy intent, and that defines the work. हमारे यहाँ कैसे सिस्टमेटिकली चीजें हटाई जाती हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे, ये चीज भी है. सो दिस इज इंटरेस्टिंग आर्टिकल, वर्क एंड वर्शिप, हाउ विश्वकर्मा पूजा इज गोइंग प्लेसेस इन इकोनॉमिक टर्म्स. करेक्ट. The interesting part is that what he says is that they started with the new trend. वो हमारे धर्मों को बांटने लगे हैं कि ईस्टर्न इंडिया का फेस्टिवल है, ये वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है, ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, जबकि हर फेस्टिवल हर जगह मनाए जाते हैं. So this whole idea talks about is not a common festival of Western India, which is not true. She observed that when the worker used it as a way to assert their rights with the managers who found it hard to resist demands dressed up in a ritual guise. लेखक का कहना है कि लोग पूजा इसलिए करते हैं प्लांटों में क्योंकि वो मैनेजर्स के ऊपर अपना वन अपमैनशिप दिखाना चाहते हैं, which is not the case. पूजा उससे नहीं होती, but that's how you build narrative. So this is about the Vishwakarma caste which you find in Kerala. So much of talking about Vishwakarma Puja limited to Eastern India. So eventually 6 separate shrines were constructed in the factory with separate groups of workers affiliated with each other. She says the management didn't want to allow them to have more than one puja in one factory, which is not true. Very studies of the steel plants. The steel plants are huge. डे टाइम में वहाँ 40,000 लोग काम करते थे, ह्यूज प्लांट. उसमें मेरे हिसाब से कम 200-250 विश्वकर्मा पूजा होते थे, एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट. देयर वाज नेवर अ रिस्ट्रिक्शन. आज भी होते हैं, आप स्टील प्लांट में जाएंगे, भिलाई या कहीं भी जाएंगे जहाँ भी शॉप फ्लोर हो वहाँ आपको दिखेगा. यहाँ they say कि this festival is for us to inquire why are the sites coming to us. So they are trying to make it into a festival only of labor class and not the managerial class. That's the segregation there. And then they are saying in Western India, there are pujas like Satyanarayana Puja and they don't celebrate Vishwakarma Puja, which is again not true. This is a picture of Sajjan Jindal, जो उनका प्लांट है बॉम्बे के पास, वहाँ पूजा. And what he writes, it has been a 3-decade long tradition to come here and do Vishwakarma Puja. 30 साल से तो यही हो रहा है. तो हमारे यहाँ पूजा बहुत जरूरी चीज थी और विश्वकर्मा पूजा करते थे. आप अगर YouTube पे जाएंगे तो अलग अलग प्लांट के विश्वकर्मा पूजा के बहुत से वीडियो मिलेंगे. इनफैक्ट मेरे लिए बहुत मेमोरेबल डे था क्योंकि पिताजी 100 पूजा देख के आते थे. 100 पूजा देखने का मतलब 100 डब्बे मिठाई के. And when I grew my brother-in-law still on shop floor, तो मैं कई सालों तक कोशिश करता था कि 17 सितंबर को उनके घर पे रहूं ताकि मिठाई में हिस्सा मिले. So what they're trying to put it here also is that कि जो आयुध पूजा होती है दशहरा में, that is only for blue collar and Vishwakarma puja is for labor class. That's the segregation they are trying to create. And this is the puja, आयुध puja in Dashara in Bombay, which auto wala hai. So how do you build this narrative and why I'm talking to you? How does it impact today's business? During 1962 war, हम स्ट्रैटेजिक ब्लंडर से तो हारे ही. जो हमारी फैक्ट्रीज थी जिनमें गोला बारूद और बंदूक बनना था, उनमें लोगों ने स्ट्राइक कर दिया. तो हमारे सैनिक सिर्फ इसलिए नहीं मरे कि स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था, और इसलिए भी मरे कि उनके पास बंदूकें नहीं थी और गोली बारूद नहीं. आपको शायद पेन नहीं एहसास हो तो उस वाइफ का, उस व्यक्ति का जो बॉर्डर पे खड़ा है लड़ने के लिए, उसको आप बंदूक नहीं दे पा रहे हैं. उस वाइफ का, उस पेरेंट्स का, उस बच्चों की स्थिति सोचिए जो इस मूर्खता की वजह से मरे. देश हारा हुआ अलग है. हमारे यहाँ ऐसी चीजें भी हुई है. 71 वॉर में दूसरा साइड पठानकोट में फैक्ट्री थी
वहां लोगों ने 24/7 काम किया, जितने दिन भी लड़ाई चली, और उन सब ने उसका ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया। उनका कहना था कि सैनिक जान दे रहे हैं तो हम कैसे पैसे ले सकते हैं देश की काम करने के लिए। सो वेयर डज दिस डिफरेंस ऑफ थिंकिंग कम्स फ्रॉम? So we had a compartmentalized thinking which is promoted by communist ideology, is चाहे जो मजबूरी हो मांगे हमारी पूरी करो. That's the line on which they work, and that is what had led to the strike. The other model was, और 62 के बाद से सोचा गया कि हमें लेबर्स के साथ भी काम करना पड़ेगा, इंडियन थॉट्स के साथ, and that's what it came. देश के हित में करेंगे काम, लेंगे काम के पूरे दाम. So I won't be cheated, but I'll do what is good for the country. It's not कि देश में पैसा नहीं है, फैक्ट्री बंद हो रही है, बट हम पैसे चाहिए नहीं तो हम काम बंद कर देंगे. What happened in 62? So it is a bigger picture. हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई को. उसका ओरिजिन क्या है हमने बहुत सोचा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है. उसका ओरिजिन ये है कि अमेरिका में प्रोटेस्ट था कि लेबर क्लास चाहता था हमको सिर्फ 8 घंटे नौकरी करने को मिले, जबकि वहां 12 से 16 घंटे काम कराए जाते थे. इसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्राइक की, पुलिस ने फायरिंग की, वर्कर्स ने भी मारपीट की और कई लोग मारे गए. सो दैट गेव बर्थ टू द लेबर डे. हमारे यहाँ जो लेबर डे सेलिब्रेशन होता है वो 17 सितंबर को होता है. सो देयर इज अ क्लासिक डिफरेंस बिटवीन द टू. लेबर डे के दिन लेबर सिर्फ सेलिब्रेट करता है, मैनेजर्स नहीं करते हैं. विश्वकर्मा पूजा के दिन मैनेजर्स या कंपनी का मालिक और जो लेबर होता है हर व्यक्ति सेलिब्रेट करता है. मैंने आपको कहा कि पिताजी 100 से ज्यादा मिठाई के डब्बे आते थे, इसलिए आते थे क्योंकि पिताजी सुबह 6 बजे प्लांट जाते थे. बाकी दिन जाए या नहीं जाए, उस दिन जरूर जाना है. और मेरे पिताजी नहीं, सब सीनियर थे, क्योंकि हर विश्वकर्मा पूजा प्लांट में जितनी भी हो, सब में जाना जरूरी है. उनके साथ नाश्ता करना, उनके परिवार के साथ खाना खाना. बिकॉज हम जब काम करते हैं हमारे देश में तो हम फैमिली रहते हैं, हमारे यहाँ काम नहीं होता है. हमारे पिताजी ड्यूटी पे जाते थे, मैं ऑफिस जाता था. अंदर समझ में आया? ड्यूटी इज योर कमिटमेंट. हम पुराने लेख भी पढ़ेंगे, प्रेमचंद से लेखों के, वो लिखते हैं कि फलाना फलाना ड्यूटी पे जा रहा था, ड्यूटी से ऑफिस हो गया. ये हम 21वीं सदी आ गए. तो जो हमारी ड्यूटी थी हमारे पिताजी की, मेरे लिए काम हो गया है. You know, that's a big difference, and it's a huge theory on it further. So, how is it impacting? ये इस देश में कभी नहीं होता था कि लेबर मैनेजर को मार दे. This went on killing spree 10, 12, 9, 8 में. अगर जो आप लोगों को ध्यान होगा, जहाँ HR मैनेजर को कई बार मारा गया, स्पेशली ये नोएडा गुड़गांव बेल्ट में हुआ था. I lost one of my seniors who was killed with Maruti ji. So this was never heard of, because आप एक विश्वकर्मा पूजा आपको 364 दिन की बंधुता में जोड़ देता है, to become a family. आप रोज रोज किसी को नहीं बोलते हैं ना कि हमारा भाई है आपके. You celebrate one thing, रक्षाबंधन, and you know that's how you are celebrating. हम इतने सारी चीजों की बात करते हैं, तो bottom line is the Indian way of building brands and Indian strategic models. So this is a quote from this book, The Inspiring Journey of a Hero. It's about O.P. Munjal, हीरो ग्रुप के जो हेड थे. उनके एक डीलर के पास उनका एक बहुत बड़ा सा फोटो लगा था. तो दूसरा डीलर आया, उसको पूछा ये तुम्हारे पिताजी का है? बोला नहीं. दादाजी का नहीं. किसी रिश्तेदार का? उसने कहा नहीं. मतलब किसका फोटो लगा के रखे हो तुम? तो उस डीलर ने पूछा कि क्या तुम जिस चीज की डीलरशिप लिए हो, तुमने उस मालिक से कभी मिला है जिसकी फैक्ट्री है? बोला नहीं. उनके घर गए हो कभी? नहीं. उनके साथ खाना खाया है? नहीं. क्या तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ तो पैसे भेजे हैं? नहीं. जब तुम्हारे भाइयों के साथ तुम्हारा झगड़ा चल रहा था, बिजनेस डूब जाता, क्या तुम्हारे साथ वो खड़े हुए? नहीं. इसे O.P. Munjal has done all this for you. So हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन होता है, बड़ा बिजनेसमैन, वो अपने साथ वाले लोगों को सप्लायर और वेंडर नहीं समझता है. मतलब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी. हमारे यहाँ सब परिवार का हिस्सा होता है, और परिवार से बोलने के लिए नहीं होता है. जैसे हमने कहा कि ये लोग जब ये कह देता है कि जब उनको एक दिन चेक मिला बोनस का, तो बोले डीलर को कब से बोनस मिलने लगा? बोनस तो एम्प्लॉय का होता है. So it had a covering note. The covering note says that due to some fluctuation in dollar price,
not in terms of pure sales. Due to fluctuation in dollar price, Hero Group has made huge amount of money. And they wanted to share with all the stakeholders. So the three stakeholders, the owners, the customers, and the dealers, the employees. So they are sharing the profit with everybody. So they walk the talk. सिर्फ दिखावे तक की बात नहीं है. They walk the talk. They treat you as a family. I'll give you another example. Karsan Bhai, Nirma. Everybody knows Nirma की success story. बहुत से केस स्टडीज आती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सब केस स्टडीज की एनालिसिस जो होती है वो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स पे होती है कि उसने कॉस्ट कटिंग की, लेबर को पे नहीं किया, ये किया. दे विल ट्राई टू फाइंड आउट सम लैकुना इन मॉडर्न टर्म्स. दे विल नेवर फिगर आउट कि व्हाट मेड हिम सो सक्सेसफुल. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट लीवर्स हैड ट्राइड टू डू दोस डेज वाज कि दे सेड कि तुम निर्मा मत रखो, आई विल मेक योर इंसेंटिव्स डबल. You will be surprised, every single stockist of Nirma refused. It's not a small thing. And they said कि whatever we have made because of Karsan Bhai. हमने जो भी कमाया है Karsan Bhai की वजह से कमाया है, चला जाएगा तो चलता है. Not many stockists will say this. They will not talk of this line. So here the story comes कि why they treated Karsan Bhai as a family. What he must be doing. सिर्फ आपने जो किया आपने देखा उससे हो जाएगा क्या? हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी सिस्टम है कि हमारे यहाँ जब मुंजाल साहब थे या करसन भाई जब कानपुर में या मान लीजिए अहमदाबाद में या कोई भी किसी डीलर के पास गए तो उस शहर के होटल में नहीं ठहरते थे, उस डीलर के घर पे ठहरते थे. और जब आप घर पे ठहरते हो मतलब आप घर का परिवार का हिस्सा हो. एंड दैट वाज द थॉट एंड व्हाट मेड देम बिलीव कि इज अ फैमिली मेंबर. Because then you know डीलर के पेरेंट्स को भी आप जानते हैं, डीलर्स के बच्चों को भी जानते हैं और आप उनके सुख दुख के भागीदार होते हैं. और जब आप इस तरह से अपने डीलर को जानते हो तब वो डीलर आपके साथ खड़ा रहता है हर परिस्थिति में. और ऐसे बहुत सारे किस्से मिलेंगे आपको अगर आप पढ़ने जाए तो. So that's where the story comes कि why our businessmen are so different. आजकल क्या होता है, I'm contrasting. I use a lot of compare and contrast method, not to say that the other thing is bad, but just to say how good this is. So आजकल नेटवर्किंग का जमाना आ गया है. लोग पहले हम मिलते थे कुछ साल, कितने लोगों के विजिटिंग कार्ड है, guys to think I'm very powerful because of that. इसका विजिटिंग कार्ड है. आज की तारीख में वो मैं देखता हूँ लिंक्डइन में कितने लोगों से कनेक्टेड है. तो साहब आपके पास विजिटिंग कार्ड होगा या लिंक्डइन में कनेक्टेड होगा तो आपको ना जॉब मिलेगा ना बिजनेस. I'm sure you all agree with it. I'm not criticizing LinkedIn. It serves certain purposes, but it can't help you in your business. आपको उससे ज्यादा बिजनेस में हेल्प और नेटवर्किंग तो अगर आप परिवार की शादी अटेंड करेंगे 5 दिन वाली तो वहां मिल जाएगा. अगर आप पंगत में किसके साथ खा रहे हैं, किसको खिला रहे हैं, किसने आपको खिलाया, अगर आप ये जानते हैं तो उससे ज्यादा बड़ा नेटवर्क आपके पास कभी नहीं. वो सबसे ज्यादा पावरफुल नेटवर्क होता है. हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम अलग अलग क्लब्स में जाते हैं. I've rarely seen those businesses materialize, very rarely in terms of real good business. वहाँ आप ब्राइब की बात कर सकते हैं, बट वो रिलेशनशिप वाला बिजनेस वहाँ नहीं हो सकता है. अभी तक तो हमने नहीं देखा. I got a mail. I said a few words as an independent director. I get often on LinkedIn people say कि सर मुझको कहीं का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है. उसको एक फनी, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वैसे नहीं बनते कि लिंक्डइन पे किसी को रिक्वेस्ट भेजा. So that shows कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सारी चीजों की बहुत फॉलो हो गई है. या हम ट्विटर पे कनेक्टेड है तो that guy is bound to help me out whenever I need. It doesn't work like that, and not at all the business part of it. So हमारे यहाँ business as a family concept समझना बहुत जरूरी है. हम एक और चीज आपको I'll share in this context when I'm talking the family. आपने ध्यान दिया है कि हमारे यहाँ पे कोई भी दुकान होती है, जूते चप्पल की होगी 4-5 होगी, किराने की होगी 3-4 होगी, कपड़े की दुकान 4-5 एक साथ होगी, स्टेशनरी 4-5 होगी, एक नहीं होती. आपने कभी सोचा क्या? और ज्यादातर लोग जो बिजनेस खोलने वाला है वही बाकी लोगों को लेके आता है कि तुम यहाँ खोलो. इनफैक्ट ब्रिटिश रोड दैट वन गाय हु ड्रोव देम आउट ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस फ्रॉम इंडिया वाज जीडी बिरला. हेलो, जीडी बिरला इतने मारवाड़ियों को लेके आया और सबको बोला टेक्सटाइल मिल खोलो. क्योंकि आप जब अकेले काम करते हैं तो आप अकेले लड़ते हैं सिस्टम से. उस चीज में जब 4-5 लोग करते हैं तो 4-5 लोग करते हैं.
मैं दुकानों की बात करता हूँ, छोटे बिजनेस की, क्योंकि आज आप सिर्फ पेन खरीदने जाइए तो 250 तरह के तो पेन है। एक दुकानदार सिर्फ पेन बेच के काम नहीं चला सकता और 250 पेन नहीं रख सकता है, उसको फाइल भी रखनी होगी। अब फाइल रखने जाइए, फाइल में और 200 वैरायटी है, अगेन वो 200 वैरायटी नहीं रख सकता और सिर्फ फाइल बेच के। तो जब 5 दुकान खुलती है तो 5 दुकान में अलग अलग वैरायटी रहती है, और जो खरीदने वाला सोचता है कि मैं वहां जाऊंगा, 5 दुकान है, किसी न किसी में तो सामान मिल ही जाएगा। इट हेल्प द होल इकोसिस्टम टू। हमारे यहाँ मॉल बनाने नहीं आते हैं कि सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, सारा बिजनेस मेरा रहेगा। इट डजंट वर्क, एटलीस्ट इट डजंट वर्क इन इंडिया। इट माइट बी वर्किंग इन यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन, बिकॉज वहां सब लोग एक जैसे होते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस मामले को लेके कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ विल यू डू बिजनेस। केलॉग्स की जब लॉन्च हुई थी, अभी जो केलॉग्स से सेकंड एंट्री में आया, फर्स्ट एंट्री में दे हैड अ सर्वे, दे वेंट अराउंड आस्किंग पीपल विल यू ईट कॉर्नफ्लेक्स। सबने बोला हाँ। कैलकुलेशन में 100 करोड़ लोग 365 दिन रोज कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे। जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, डूब गया, लोगों से पूछने हैं कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं? हाँ। भी नहीं समझ में खाते हैं। भाई साहब, हमारे पास इडली है, डोसा है, वड़ा है, पोहा है, पराठा है, एक दिन 15 दिन में कॉर्नफ्लेक्स भी है, यू नो। तो अगर आप हमको नहीं समझेंगे और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बिजनेस डूबता रहेगा। सो वी हैव टू गेट डाउन टू अंडरस्टैंड द कल्चर एंड द बिहेवियर ऑफ पीपल and make the business sound. So what I was talking about, strategy as a family is not about family-owned business. People start confusing. When you say family, means anybody and everybody who is connected with your business is your family, and you have to deal with them with that respect. आज भी बॉम्बे में हमारे यहाँ पहले जो कंसेप्ट था मैं आपको बताया, आपको गद्दी मिलेगी व्यापारी से। तो गद्दी में क्या होता है कि जब दूर से कोई सामान खरीदने आता है तो ऑफिस के साथ गद्दी होती है जहाँ रहने सोने खाने की व्यवस्था होती है। कुक होता है जो खाना बना के देता है। आज भी कालवा देवी जैसे एरिया में जो प्राइम प्रॉपर्टी है, वहां भी हमारे व्यापारिक गद्दी चाहते हैं। तो ये नहीं बोलते हम बंद कर देंगे, जो आ रहा है तुम होटल में रहो आज के सिस्टम। तो हमारा बिजनेस का तरीका बहुत ही अलग रहा। मैं एक सज्जन पे पुस्तक लिखा, 100 साल की उम्र है, काशीनाथ गाड़िया। उनकी गद्दी आज भी चलती है, 100 साल के हैं, खुद बिजनेस संभालते हैं, खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 100 years शॉप। एंड उनके बारे में पूछना, बुक लिख रहा था, गोरखपुर में लोगों से मिला, हरियाणा में बात करी, राजस्थान में बात करी। हाँ, वो हमारे दादाजी के साथ थे, हम तब से काम कर रहे हैं। हमारी घर में शादी भी होती है तो उनसे पूछ के होती है। वहां कपड़े का होलसेल अवेलेबल, शादी होती है, काशीनाथ जी को जरूर पूछा जाता है। सो इट वॉज ए वेरी डिफरेंट बिजनेस मॉडल, और ये आज भी है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज में आप जाएंगे, बजाज है, बिरलाज है, दैट मॉडल स्टिल एग्जिस्ट विद देयर ओल्ड डीलर, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इसीलिए फॉरेन कंपनीज भी आती हैं तो दे कांट वाइप आउट आवर बिजनेस ओवरनाइट। दैट्स अनदर एग्जांपल कि जहां भी ब्रिटिश गए, कॉलोनाइज, जो भी देश कॉलोनाइज रहे, इवन फ्रेंच या डच ने कॉलोनाइज किया, वहां का लोकल बिजनेस वाइप आउट हो गया, एक्सेप्ट इंडिया। एनी रीजन व्हाई? क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजनेस था वो किसी राजा या राज्य का नहीं था कि आपने 2 लोगों के गले काट दिए तो व्यापार खत्म हो गया। हमारा व्यापार था जो फैमिली के पास था, तो आप कितनों को मारेंगे, हमारा व्यापार चलता रहा। लोग यहाँ से उस राज्य से वहां चले गए, वहां व्यापार चल गया, एंड इट कीप्ट फ्लरिशिंग। एंड दैट इज द रीजन जो हम बहुत रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अपने आप को, कि इतने इन्वेडर्स आने के बाद, इतने लुटेरे आने के बाद भी हम हर बार इकोनॉमिकली कैसे रिवाइव। जो सीरिया से आए, मंगोल से आए, अफगानिस्तान से, उनकी स्थिति आज भी ये से जितने भी लूट के ले गए। और तो ब्रिटेन की देखिए, स्टडी से 45 ट्रिलियन लूट के लेके गए, आज हम उनसे आगे हैं इकोनॉमिक। सो देयर इज इनबिल्ट टैलेंट व्हिच कीप्स पुशिंग अस टू डू वेल इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली। हम जितने भी एडवर्स सिचुएशन में जाए हैं, हम वहां से हमेशा रिकवर किए हैं, बिकॉज देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिक मॉडल ऑफ डूइंग बिजनेस। This is one of the case studies which I enjoyed most sharing. 1991 में, with your permission, can I sit for some time? Sure. Yes, sir. So actually, with third round of COVID, weakness कभी भी recover नहीं हुई. So, आप बैठ के बोलिए ना क्या? so जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, तो
बहुत सारे कंपनीज ने लॉबी किया सरकार से कि हम पे इम्पैक्ट गलत पड़ेगा इंडियन कंपनीज की। आई डोंट ब्लेम देम, उन्होंने जैसा सिस्टम देखा था उस समय बेस्ड उनका आर्ग्यूमेंट था। चेंबर ऑफ कॉमर्स थे, इंडस्ट्रीज बॉडीज थी, दे ऑल लॉबिड विद द गवर्नमेंट। बट ये जो पानी बेचते थे, नारियल पानी और शिकंजी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन पे होने वाला था। क्यों? क्योंकि कोक और पेप्सी आ गए थे। दे कुडंट हैव काउंटेड कोक और पेप्सी विथ लॉबिंग और एडवर्टीजमेंट, बट दे सर्वाइव। उन्होंने कोई मोर्चा नहीं निकाला, उन्होंने कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, वो सर्वाइव किए। एनी थॉट्स व्हाई दे सर्वाइव? कंज्यूमर के पास में करेक्ट। सो व्हाट ही डिड, एक छोटा सा थर्मोकोल बॉक्स छिपा हुआ दिख रहा है, उसने थर्मोकोल बॉक्स लाया, उसमें कोक पेप्सी भी रखी। नारियल पानी भी बेचता था, जो कोक पेप्सी आया उसको बेचता था। तो नारियल पानी 60 रुपए हो गया। वैल्यू एडिशन। मुंबई में रोज सुबह घर में फ्रेश काट के देता है, 10 रुपए और लेता है। अब पीजिए 70 रुपए का नारियल पानी, कोक पेप्सी 20 रुपए में मारामारी कर रहे हैं। बट द ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट उसका कोई एसोसिएशन नहीं था, कोई एमबीए नहीं किया, कोई मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, बट ऑल ऑफ देम अक्रॉस इंडिया गॉट द मैसेज कि इनको डील कैसे करना है कोक पेप्सी को। दैट इज वेयर आई सेड वी हैव ए इनबिल्ट entrepreneurial quality. Now tell me the business answer. A lot of people from business and management. What is a big managerial lesson from them for a business lesson out of this example? Accept change and be very versatile. Okay. affect the weakness of the hiring. Okay. These people study customer and the requirements and then उसके साथ उसको जरूरत हुआ तो सारे ऑप्शंस दे देते हैं। Service हिम्मत नहीं आती feedback system Delivering your product genuine है. Basically, the advantages of coconut water, people have understood the value, the advantages of it over the Coke and Pepsi. पेप्सी की ऐड उन्होंने कितनी इसलिए पेप्सी की ऐड है कि पेप्सी के लिए स्टॉक में है और वहाँ पे वो अपना ही प्रोडक्ट करते हैं। They are somehow using the So I'll give you a chairman's view or a CEO's view or a VP marketing's view. Increasing market share of नारियल पानी और नींबू पानी, हम प्यास बुझाने के बिजनेस में हैं। So I'll give you another example. So कैडबरीज जब इंडिया में आई, कैडबरीज का एक ऑब्जेक्टिव था, भूलने की जरूरत नहीं है, लड्डू को रिप्लेस करना है मिठाई। पप्पू पास हो गया तो लड्डू खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, यू नो, एंड दे वर्क ब्यूटीफुली। आई अप्रिशिएट देम, लुक एट देम हाउ दे मूवमेंट अबाउट इट। उसके बाद उन्होंने बड़ों के लिए ऐड बनाया। अगर हमारे जनरेशन के लोग हैं, मैं कमर्शियल नहीं लाया, आपको याद होगा वो लड़का क्रिकेट शॉट मारता है, लड़की डॉजेस इट एंड गॉट इट बैक। हमारे समय का मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल था। देन एक बूढ़े अंकल आंटी को दिखाता है फुटबॉल पे किक मारते हुए। सो बेसिकली चॉकलेट जो था बच्चों का प्रोडक्ट था, दे टुक इट टू एडल्ट, देन दे टुक इट टू कपल, एंड देन कम्स महीने की पहली तारीख। सो दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ ए ग्रोसरी लिस्ट व्हिच दे बिकेम। अब चावल दाल आटा के साथ कैडबरीज चॉकलेट भी मंगा रहे हैं। सो दे वेंट सो ब्यूटीफुली, उनको कल्चर समझ में आता है। उन्होंने समझा मिस पालनपुर, हम गांव की लड़की नहीं दिखा सकते, उन्होंने गाय तो दिखाया मिस पालनपुर। They penetrated the rural market. One of the finest campaign that anybody who carried out, who understood our system so well. एक दिन में उनको पूरा market share नहीं चाहिए था. They went step by step, one segment, one segment, one segment. An awesome job what Cadbury's did. और हमारे मिठाई वाले उससे कैसे compete कर पाते हैं? सेम नारियल पानी वाले की स्थिति। कोई विज्ञापन नहीं, मैं तब एक आध लोगों से मिला भी कि मिलके हम विज्ञापन दें इनकी मिठाई का, मुझे साफ हो जाएगा, चिंता मत करिए सर, यूजीसी कराया है। और सो व्हाट इज द करंट ट्रेंड, यू नो दिस? उन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ लड्डू कितने तरह के बनते हैं? सूजी, नारियल, बूंदी, बेसन, तिल, बोलते जाइए, खत्म नहीं होगा। उन्होंने चॉकलेट को भी लड्डू बना दिया। आपकी सारी ब्रांडिंग को उठा के उन्होंने कमोडिटी बना दी। मोदक 4-5 तरह का, एक चॉकलेट भी है। तो हमारे पास ये क्लैरिटी है कि हम चॉकलेट का मार्केट शेयर नहीं बढ़ाते,
हम बेसन के लड्डू का मार्केट शेयर नहीं बेच रहे, हम मिठाई बेच रहे हैं। तो हम चॉकलेट का भी मिठाई बेच देंगे। हमारे बेटे ने अपने 10th में कुकरी लिया था, उसने पान बनाया चॉकलेट डाल के, एंड ही गॉट द आइस। देश में कुछ भी हो सकता है। सो हमने चॉकलेट को बना दिया, जहां जहां यूज करना था हमने कर दिया। सो हाउ आर इलिटरेट नॉन MBAs businessmen deal with multinational is just awesome. They understand so beautifully which business they are in, and I have many examples like how they would deal. So कई बार हमको अगर लगे कि हमारा बिजनेस का आंसर हमारा हार्वर्ड रिटर्न, IIM रिटर्न, I'm associated with a lot of IIMs, but I'm not disrespecting. I'm just saying that it's appreciate the way our common man understands our business model. Because if you understand, then only do well. After all, somebody from Harvard or IIM was doing those campaignings for Cadbury's, which is around building brands, and so many brands have been built. So the idea, as I said, is not to run down, but to appreciate what is good, what we not notice, and this is the Indian model of business. हम किसी एक चीज के मार्केट शेयर के पीछे कभी नहीं भागते, हमारी जो ग्राहक की नीड है हम वो देंगे, and that's how our business functions so beautifully. There are many such examples. We have a time constraint, so the brand building part I am not covering because it's a huge, at least it needs 1 hour to talk about how Indians build brands. Typical model. But if I have to this part is very interesting on market share. So Ratan Tata in one of his interviews said, I think all companies need to keep looking at their business definition and possibly from time to time to see if that definition needs to be redefined. If you take the example of Tata Steel, they should say that they are a steel company and find themselves in a shrinking market where steel is under threat of being replaced by some other material. He was talking about fiber, which is cheaper, lighter, and more durable. The question is, what do we call ourselves? One view was that steel is material, so can we be a materials company? We don't have to be in all materials, but can we be in composite? Can we be in plastic, laminate, etc.? The automotive business needs to think similarly, and so does the chemical business. We have to keep looking at ourselves and asking, what is our business? You can look at yourself as an iron ore company making steel, or you can look at yourself as a materials provider. So don't look at building market share for steel. Start supplying material. That is what is needed by the consumer. And that's where even Ratan Tata, as I said, this is chairman's perspective, CEO's perspective. This is what at best a VP marketing's perspective. What business is needed. So, what is the strategy? Indian way of strategy. How do you find? So, strategy is something which is very open in front of you, but your competitor can't do anything about it. Isn't it? आप क्या कर रहे हैं कर्सन भाई का? आपको पता है वो घर पे जाके रहता है. With all due respect, हिंदुस्तान लीवर का चेयरमैन जाके नहीं रह सकता सब डीलर के साथ. GM भी नहीं रह सकता है. सेल्समैन भी नहीं रहेगा, उसको मालूम नहीं कल कौन सी नौकरी करनी है. So, strategy is something which is very important upfront and you can't do. अब देखिए कैडबरीज का आखिरी कैंपेन क्या हुआ. उन्होंने मिठाई को स्पेसिफिकली लड्डू को रिप्लेस करने की कोशिश की. उनका ऐड आया, मन में दो लड्डू हो गया. आपने वर्षों की मेहनत लड्डू को प्रमोट करने में लगा दी थी. आप जिस लड्डू को इंडियन मिठाई को हटाने के लिए 10-12 साल कैंपेन किया, उसके बाद ऐड लाया कि कैडबरीज खाने से क्या हुआ, मन में दो लड्डू फूटा. तो लड्डू का विज्ञापन अल्टीमेटली कैडबरीज एंडेड अप हुआ. So you have to be very clear how you are going, where are you going. So strategy is something which should be very upfront to the competitor कि हाँ ये कर रहे हैं तुम क्या करोगे. That's the mindset. उसका बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है सुदर्शन चक्र है. महाभारत की लड़ाई 1 मिनट में खत्म हो सकती थी, सबको मार सकते थे सुदर्शन चक्र. सुदर्शन चक्र का पूरा यूज महाभारत में किसी को मारने के लिए. एक बार हुआ स्ट्रैटेजी की उसका जब बादल को डरने की. That's how you do it. हमारे पास है स्ट्रैटेजी, तुमको पता भी है करो क्या. That's where Indian businessmen runs. That's why we have survived from long time. हमने शुरू किया था सबसे छोटे बिजनेसमैन जो तराजू पे तोड़ता है. तराजू जो सबसे पुराना तराजू मिला वो मोहनजोदड़ो की खुदाई. हमारे यहाँ तब से ये थॉट है. The beautiful part is that आप नेशनल म्यूजियम दिल्ली में जाएंगे तो तराजू आपको दिखेगा जो मोहनजोदड़ो से मिला है. और ये सिविलाइजेशनल इशू है. हमारे दोस्तों से मैंने पूछा, बताइए ये चीज बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बेचने वाले
यही करते हैं. That's a civilizational impact of our business. It's a small thing to speak volumes. आज भी जो नया दुकान खोलता है वो इलेक्ट्रॉनिक में एक मशीन लेके आया है, उसमें बराबर हो जाता है तब भी वो एक आदमी करता है. So we must start respecting our small businessmen and start learning from them. Corporate gurus आएंगे, बहुत सारे YouTube पे talks मिलेंगे. ये learnings के लिए आपको खुद ध्यान देना होगा आसपास में. And if you have this learning, you will always do it. I hope I did justice to the topic.